So very good morning to all of you. Students, today we will start exercise 18A, right? So in this exercise, you have a chapter name mensuration 1 area of polygons. We will discuss the only area of polygons and how to find the area of different polygons. So first of all, you have to remember these formula which are given in your page number 243, right? Which is area of rectangle, perimeter of rectangle, how to find the diagonal and of different shapes, right? So after learning these formulas, then you can start a new chapter or exercise question answer. So this is your first question answer. We have to find the shaded area. You have given the larger rectangle and smaller rectangle, and here this part is a shaded part. We have to find the shaded part. So how to find the shaded part? We first of all find the larger area of larger rectangle, and then subtract कर दो smaller rectangle. You will get the area of a path, right? So larger rectangle I have named A, B, C, D. So area of larger rectangle is L into B. So length is given 15 meter. So 15 meter into breadth is given 10 meter. So area is 150 meter square. So now find the area of a smaller rectangle, that is EFGH. So smaller the area will be length into breadth. So length is given 6 meter, breadth is given 4 meter. So area is 24 meter square. Now to find the shaded area, we will subtract this area minus larger area minus smaller area. So shaded area will be equal to 150 meter square minus 24 meter square. ये आ गया 126 meter square. So understood how to find. So बच्चे in next B part, ये second part है ना, diagram is given in. So in this diagram you have given that length is given 50 meter and breadth is given 40 meter, right? We have to find the area of path which is given 5 meter is, this is 5 meter. तो ये 5 मीटर और 1.5 मीटर है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना. 5 मीटर में थोड़ी सी लार्जर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. ये 1.5 है, मतलब 5 मीटर ये वाला एरिया है, ये वाली सॉरी ब्रेड्थ है इसकी, और 1.5 ये है. दिस इज 1.5, ये वाली इतनी, ये शेडेड है. दिस पार्ट इज शेडेड पाथ. तो वी हैव टू फाइंड द शेडेड पाथ, राइट? So to find the area of this path, this is 1.5 and this is 50 meter. So area of path will be equal to 1.5 into 50 meter, right? मल्टीप्लाई कर दो, 75 मीटर आ गया, ठीक है. तो now find the area of this path. This is 5 and this is 40. तो एरिया ऑफ पाथ 1 कर लो, ये है ना. एरिया ऑफ पाथ 2 कितना आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 मीटर. तो ये आ गया 5,020 200 मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, एरिया ना, इसलिए. नाउ पहले ये दोनों एरिया ऐड कर दें, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा. बट ये वाला एरिया 2 बार आ गया, क्योंकि आप पहले ये ऐड करोगे फिर ये ऐड करोगे, तो ये वाला एरिया कॉमन एरिया ना, ये कॉमन एरिया 2 टाइम्स आ गया, तो 1 टाइम ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है. तो कॉमन एरिया फाइंड आउट कर दो पहले. फाइंड द कॉमन एरिया. कॉमन एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है 5 और ब्रेड्थ कितनी है 1.5. तो 5 मीटर इनटू 1.5, ये आ गया आपका आंसर 7.5, ठीक है ना. हाँ, 7.5 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पाथ इज इक्वल टू दिस एरिया प्लस
प्लस दिस एरिया 200 मीटर, राइट, 200 मीटर स्क्वायर माइनस 7.5, माइनस 7.5, तो ये आ गया आपका 275 माइनस 7.5। तो इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, राइट। नाउ बच्चे लेट अस डिस्कस द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी मैं आपको थर्ड पार्ट समझा दूँ, फोर्थ आप अपने आप कर लेना, राइट। सो स्टूडेंट्स इन थर्ड पार्ट यू हैव गिवन दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। पैरेललोग्राम में यू हैव गिवन दिस बेस एंड हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी ना, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो it will be a base and this will be a height, because you know the area of parallelogram is equal to, area of parallelogram क्या होता है, base into height, फॉर्मूले जो फर्स्ट पेज में गिवन है उसी से लर्न करने हैं, ठीक है। तो base into height, base is given 3 सेंटीमीटर and height is given, ये height होगी ना, क्योंकि ये और ये सेम ही है, रेक्टेंगल है ये, तो ये होगी 4, तो हाइट होगी 4, तो बेस इनटू हाइट होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एरिया ऑफ शेडेड पाथ, जो कि एक पैरेललोग्राम है, राइट। अब फोर्थ पार्ट में बच्चे देखो, फोर्थ पार्ट में बहुत इजी है ये। तो आपने क्या करना है, इस आपने पहले पूरी रेक्टेंगल का जो भी है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये 7 है ना, तो ये भी 7 हो गया, तो पूरा हो गया ये 12, तो ये एक स्क्वायर है 12 इंटू 12, तो 12 में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर इस ट्रायंगल का एरिया, फिर इस ट्रायंगल का एरिया, फिर पूरे स्क्वायर में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दो। ये आप खुद ट्राई करो ये क्वेश्चन, राइट। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। सो ओके बच्चे, सेकंड क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर इज, तो सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर होता है ना सेमी सर्कल की फॉर्म में, द डायमीटर इज गिवन 7 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर मींस आउटर बाउंड्री, तो पहले ये फाइंड आउट करेंगे, ये वाला पाथ, ये तो पता ही है हमें, है ना डायमीटर, तो ये वाला पाथ फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द सेमी सर्कल पाथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस कितना हो गया, डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस विल बी 7/2, तो ये हो गया 7/2 रेडियस, है ना। तो वी नो कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, बिकॉज ये जो है ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज πr, या 2πr डिवाइडेड बाय 2 कर दो, πr आ गई, पाई यू नो 22/7, r इज योर 7/2, कटिंग हो रही है कर दो, यू विल गेट 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो टोटल पेरीमीटर कितना आ गया इसका, 11 सेंटीमीटर प्लस ये 11 आ गया, यहां से देखिए यहां पर, है ना, 11 प्लस 7, तो टोटल आ गया 18 सेंटीमीटर, राइट। ओके, सो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1.26 मीटर, राइट, एंड द क्वेश्चन इज हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 500 रेवोल्यूशन। तो मतलब अगर ये व्हील 500 रेवोल्यूशंस लगाए, ये एक मान लो एक राउंड लगाता है ऐसे, तो यहाँ पे पहुंच गया, है ना, तो ऐसे अगर 500 रेवोल्यूशंस लगाता है, ठीक है, और तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो जब एक व्हील मान लो यहाँ से चला और यहाँ पे दोबारा पहुंच गया, तो ये एक राउंड हो गया, एक राउंड में ये यहाँ तक पहुंचा, ठीक है ना। तो हमने फाइंड आउट करना है कि 500 रेवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। तो एक राउंड में मान लो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक राउंड में एक सर्कमफ्रेंस, समझ गए ना। तो 500 में कितना करेगा, यानी कि अगर हम इसकी सर्कमफ्रेंस को 500 से मल्टीप्लाई कर दें
you will get the total distance। या फिर एक आप फॉर्मूला याद ही कर लो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील का एक फॉर्मूला होता है क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, एक सरकमफ्रेंस, एक राउंड मतलब, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये सरकमफ्रेंस रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सरकमफ्रेंस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, जो भी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस। मैंने पहले बताया था ना आपको, अगर हम सरकमफ्रेंस को यानी कि एक राउंड को टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील। नाउ सरकमफ्रेंस हम फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड सरकमफ्रेंस। पहले सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होती है सर्कल की, 2 पाई r, ठीक है ना, 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू कितनी है, दिस इज द डायमीटर इज गिवन, तो r इसका हाफ हो जाएगा 1.26 डिवाइडेड बाय 2, राइट। इसको सॉल्व कर लो, नीचे 100 आ गया, 7 पे तो कटिंग हो नहीं रही, देख लेते हैं, 7 1 7, देन 5 हो रही है, 18 आ गया, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 22 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 टू द 36, 36 प्लस 3 39 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आ गया 3.96 मीटर है, मीटर। तो इसका मतलब एक सरकमफ्रेंस इसके इक्वल होगी, तो नंबर ऑफ टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहां पे करो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस यानी कि 3.96 इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज 500, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले डेसिमल हटाओ, यू विल गेट 100 एट डिनोमिनेटर इनटू 500, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो ये आंसर आ गया, टोटल डिस्टेंस इतने मीटर आ गया, राइट, ओके। सो स्टूडेंट लेट अस डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन इन व्हिच यू हैव गिवन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग whose external diameter is 21 and diameter radius whose external radius is 21 and internal radius is 14 centimeter। तो we have to find this area of ring, जो कि एरिया ऑफ पाथ क्या हुआ, तो हाउ टू फाइंड, तो लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, लार्जर सर्कल, तो एरिया ऑफ रिंग विल बी इक्वल टू लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, राइट। अब लार्जर एरिया होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, माइनस स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल R हो गया 21, स्मॉल हो गया 14, तो पहले तो पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, रेडियस कैपिटल है 21, स्मॉलर है 14, तो पाई होता है 22/7, ये हो गया आपका 441 माइनस 196, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 22.7 इंटू माइनस कर लो 441 माइनस 196, ठीक है, 13 माइनस 9 4 245, देन 7 पे देखते हैं कटिंग हो रही है कि नहीं, 35 आ गया, तो सिंपली मल्टीप्लाई 22 into 35 you will get the area of a ring, right। So student let us discuss fifth one में given है the side of the equilateral triangle is
इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड है 16 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड, ये फाइंड आउट करनी है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड का, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। अंडर रूट 3.2 इंटू हाइट, जो भी मतलब वो साइड है, सॉरी साइड इंटू साइड, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो अंडर रूट 3.2 इंटू साइड कितनी गिवन है 16, कटिंग कर दो 8, तो आंसर आ गया 8 रूट 3 मीटर एंड सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो इसी तरह अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है, वैसे तो गिवन नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, एरिया होता है अंडर रूट 3.4 ए स्क्वायर, ए मतलब साइड स्क्वायर, जो साइड है उसकी। तो ये एरिया का फार्मूला होता है, ये लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड का फार्मूला होता है, याद रखना, राइट। तो बच्चे 6 क्वेश्चन में क्या है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज, तो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका इनर सर्कुलर ट्रैक मतलब सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है इनर, ठीक है। तो उससे हम पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। फिर द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, तो हमें आउटर रेडियस भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रैक का, जैसे हमने सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट किया था ना, तो इसी का पहले एरिया फाइंड आउट करके सर्कुलर रिंग का उसको रेड से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप द फेंस। तो ये आपको आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है। वैसे फेंस करनी है तो इसको मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो बच्चे वी हैव गिवन इनर सर्कल की सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस से पहले हम 2 पाई आर की इक्वल होती है ना, जो स्मॉल आर लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर हो जाएगी जो भी हमारी आएगी, ठीक है। तो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 220, इससे पहले हम आर फाइंड आउट कर लेंगे। आर क्या होगी 220 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो r इज इक्वल टू 220 इंटू पाई, 20 पाई की वैल्यू है 22/7, 7 ऊपर चला गया, ये आ गया 10, ये आ गया 5, तो r की वैल्यू आ गई 35 मीटर, r की वैल्यू 35 आ गई, तो ये 35 आ गया यहाँ तक। तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, ये 35 है, तो कैपिटल R 35 + 7 यानी कि कैपिटल R 42 हो गया, और स्मॉल r हमारे पास आ गया 35। अब वो कह रहा है कि हमने लार्जर सर्कल के ऊपर एक फेंस लगानी है, मतलब 4 दीवारी करनी है या वायरिंग करनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, रेट हमें गिवन है। तो पहले हम फेंसिंग कर लें ना, फेंसिंग में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया के पेरीमीटर, यस फेंसिंग में हम पेरीमीटर करते हैं यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस। तो हमें वी हैव टू फाइंड द आउटर सर्कमफ्रेंस, तो आउटर सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, बट इसमें अब कैपिटल आर यूज होगी क्योंकि हमने आउटर की फाइंड आउट करनी है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, कैपिटल आर विल बी 42 मीटर, तो अब ये कटिंग हो ही रही है तो कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो बस, 6 × 12 इंटू 22, तो ये आंसर आ गया आपका 264 मीटर। ये हो गया आपकी आउटर सर्कमफ्रेंस। अब हमें गिवन है कि कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, अगर रेट गिवन है 2 रुपीज पर मीटर, तो रेट हमें पता है टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, या कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू रेट इनटू सर्कमफ्रेंस। रेट कितना है ₹2 पर मीटर, और सर्कमफ्रेंस कितनी है 264 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, मल्टीप्लाई आ गया आपका आंसर रुपीज में, तो 264 × 2 कर दो, यू विल गेट द आंसर 8, 6 × 12 and 5, तो इतने रुपीज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई, ठीक है ना, अंडरस्टूड। सो बच्चे लास्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में यू हैव गिवन दैट दिस इज अ सेमी सर्कल, और उस सेमी सर्कल में से मैं ये ट्रायंगल रिमूव कर दी, तो वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग एरिया।
तो हम कैसे करेंगे, पहले सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। बट सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी वांट रेडियस। रेडियस कैसे आएगा, वी नो दैट सेमी सर्कल में ये जो एंगल बनता है ट्रायंगल का वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। एंगल इन द सेमी सर्कल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम ये हाइपोटेन्यूज जो कि एक डायमीटर है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो h² इज इक्वल टू b² प्लस t², यही फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का। तो बेस क्या है 3, हाइट क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है 4। तो ये आंसर आ गया आपका 9 प्लस 16 दैट इज 25 इज इक्वल टू h²। h उधर जाके अंडर रूट हो गया, मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट कर दो सीधे 5 आ गया। h की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, तो मतलब dA की वैल्यू आ गई 5। इट मीन रेडियस विल बी इक्वल टू 5/2, है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया सीधे लिख दो यहाँ पे, रिमेनिंग एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट आ जाएगा ABD, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू हाफ इनटू पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस है, चलो लिख ही लो यहाँ पे, पहले फॉर्मूला लिख लो, अब वैल्यू पुट कर देते हैं नेक्स्ट में। 22/7 रेडियस है इसका 5/2 पाई r स्क्वायर है माइनस हाफ बेस कितना है 3 और हाइट होगी 4। बस इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।